So that way was an underground passage. So how was the way? The way was an underground passage. क्या था वो? कैसा पैसेज था? कैसा रास्ता था वो? एक अंडरग्राउंड रास्ता हुआ करता था. टिल्लू's father went every day for work along that passage. टिल्लू के फादर जो थे वो काम के लिए हमेशा उस रास्ते से ही होकर जाते थे. एंड एवरी डे ही कैन कम बैक फ्रॉम द डायरेक्शन. और उसी रास्ते वो वापस भी आते थे. What lay at the end of that forbidden route? Forbidden मतलब पता है जिस चीज को मना कर दिया गया हो उसे कहते हैं forbidden. मतलब जहां पर जाना क्या हो? prohibited हो, उसको बोलते हैं हम लोग forbidden route. आखिर ऐसा क्या है उस रूट के अगले भाग में? Not only टिल्लू but a great majority of the community. वो केवल टिल्लू की फैमिली was not living on that planet. In spite other families were also living in the same artificial condition. So nobody was allowed. Very few people were allowed to go through the passage. So many of the people of that community were thinking about the exciting experience of the next part of the route. So Tillu's father was one of the select few permitted. So Tillu's father was allowed to go there, and the above conversation invariably, it means this conversation was taken. This permission took place between Tullu and Tillu's mother, and whenever he insisted on following his father. जब भी वो अपने पिता के पीछे करने के बारे में अपनी माँ से कहता था, उसकी माँ उसे इसी तरीके का जवाब दिया करती थी. ओके, नाउ उत्कर्षी रीड बेटा. मैम, can I start reading? Yes. Today, however, was different. Tillu's father was enjoying a siesta at home until Tillu managed to get hold of his security guard. Then, evading his watchful mother's eye, Tillu made his way to the forbidden passage. A metal door barred his entry, but Tillu had watched his father slip the magic card into a slot. He did the same, and the door opened noiselessly. A well-lit passage seemed to beckon him. Snatching the card and become of another slot in the wall, Tillu started his march along a slow, quiet passage led from the underground capital to the surface of the planet. Tillu looked forward to seeing the sun if it was daytime, stars was night, which he had heard and read so much, but alas, to be. Okay, stop. So today, however, was different. So every day when his father was going, he could see that what his father did to open the passage. So every day he was looking at the working at the process what he was doing. Now today, however, was different. Now today Tillu father is not going to the office and he is enjoying at home. A siesta, I think it is a kind of program, or I think it is something of you can say delicacy. And Tillu managed to get hold of his security card. उस दिन टिल्लू को क्या मिल गया? उनका सिक्योरिटी कार्ड मिल गया. Then evading his watchful mother eyes. किसी तरह evading मतलब होता है बचना. Evading मतलब क्या होता है? बचना. अपनी मम्मी की watchful eyes से बचकर Tillu made his way to forbidden passage. Finally he went to the forbidden passage. A metal door barred his entry. वहां पर क्या था? बीच में एक लोहे का मेटल का दरवाजा लगा हुआ था. But Tillu had watched his father slip the magic card into a slot.
लेकिन उसने अपने पापा को क्या करने देखा था, उस मैजिक कार्ड को, मतलब जो उसको मिल गया था, जो कार्ड मिल गया था, उस कार्ड को उसने देखा था कि उसके पापा क्या करते थे, he inserted that card and the door will be opened. So he did the same and the door opened noiselessly. So a well-lit passage seemed to be beckoning him. उसको लगा था कि अब जो पैसेज आएगा, मतलब जो रास्ता आएगा वो बहुत ही क्या होगा, उजला होगा, बहुत ही ब्राइट होगा, पूरा रास्ता बिल्कुल एकदम जगमगा रहा होगा। स्नैचिंग द कार्ड, जल्दी से उसने अपने कार्ड को खींचा, जैसे बच्चे करते हैं, उनको लगता है कि उनका कार्ड अंदर चला जाएगा, तो उसने अपने कार्ड को खींचा, विच हैड कम आउट ऑफ द अनदर स्लॉट इन द वॉल, मतलब जिस स्लॉट से उसने इंसर्ट किया था उस स्लॉट से वो वापस नहीं आया, बल्कि वो दूसरे स्लॉट से वापस आया। एंड टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलोंग अ जेंटल अपवर्ड स्लोप। अपवर्ड मतलब वो स्लोप कैसा था, ऊपर की ओर था, तो स्लोप कैसा था, वो ऊपर की ओर था। तो फाइनली उसने अपनी यात्रा चालू कर दी अपवर्ड, ऊपर की ओर। फॉर द पैसेज लेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। उसको लगा कि अब जो प्लैनेट का जो सरफेस है उससे मैं ऊपर जाऊंगा, उसको ऐसा लगा। लेकिन टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन, टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन इफ इट वॉज डे टाइम। उसको लगा कि अगर वो प्लैनेट से ऊपर जाएगा तो उसे क्या दिखाई देगा, या तो उसे सन दिखाई देगा, या तो उसे क्या दिखाई देंगे, स्टार्स दिखाई देंगे। अगर डे टाइम हुआ हो, क्योंकि उसने तो कभी सन और स्टार्स को देखा ही नहीं था। हाउ वी केम टू नो दैट इट इज डे टाइम और नाइट टाइम? यस, when it is bright outside we can understand it is day. If it is not bright outside, it is dark, so we can understand that it is night. But because he was living in an artificial condition, so he was not knowing what is the difference between daytime and night time. But in his books it was written that when the sun arises it is daytime, and when the stars arises it is नाइट टाइम। सो उसको लगा कि अगर ये डे टाइम होगा तो उसे क्या देखने को मिलेगा, सन देखने को मिलेगा, और अगर रात हो रही होगी तो उसे स्टार्स देखने को मिलेंगे। अबाउट विच ही हैड हर्ड एंड रेड सो मच, सो इट मीन्स ही हैड रेड अ लॉट अबाउट द प्लैनेट एंड अदर स्टार्स। ओके, बट अलास दैट वाजंट टू बी। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके, प्रभाकरण, would you like to read बेटा? Ma'am, I read. Okay बेटा, read. Tillu had undergone the study engagements in the invisible Mechanical devices had an already ticket and packed the knowledge
in the three daddy had made to survive. Okay, silent. Now, Tillu has underestimated the security arrangements. So, Tillu thought that nobody will catch him. What he thought? He thought that nobody will catch him. कोई भी उसको पकड़ नहीं सकता. उसे शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि जहाँ पर जाना इतना मना है वहाँ पे सिक्योरिटी भी क्या हो सकती है, बहुत मजबूत हो सकती है, बहुत ही क्या हो सकती है, डेंजर हो सकती है. तो एक इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइस हैज ऑलरेडी डिटेक्टेड and photographed the small intruder. So when he came into the passage, one camera machine or CCTV camera has taken the photograph of that boy and already sent to the authorities. मतलब जो भी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स होते होंगे उनको उसने भेज दिया था. ओके, सो क्या हो गया था कि उसको पता भी नहीं चला और किसी मैकेनिकल डिवाइस ने उसकी फोटोग्राफ ले करके ऑलरेडी अथॉरिटी तक पहुंचा दी थी. वेयर इट वाज थोरोली चेक, जहां पर सेंट्रल ब्यूरो ने उसकी फोटो को पूरा तरीके से चेक किया. एंड बिफोर ही हैड एडवांस्ड टू 10 paces अ स्ट्रॉन्ग हैंड, जब तक वो 10 कदम और चलता उससे पहले ही एक बड़ा सा मजबूत सा हाथ उसके कंधों पर आकर रुका. जेंटली बट फॉर्मली, बड़े ही सज्जनता से, मतलब ये नहीं कि उसके साथ मारा पीटी करने लगा, मतलब बड़े ही जेंटली वो उसके पास आया, लेकिन उसने उसके बॉडी को बड़ी ही जोर से पकड़ा. एंड ही वॉज एस्कॉर्टेड. एस्कॉर्टेड मतलब होता है किसी चीज को कहीं ले जाना, उसको बोलते हैं हम लोग एस्कॉर्टेड. सो ही वॉज escorted by the security staff back to home to an anxious and angry mother. वो जो सिक्योरिटी स्टाफ था वो क्या कर रहा था, वो बच्चे को वापस अपनी मम्मी के पास ले जा रहा था. While he was being scolded, जब उसे डांटा जा रहा था, he received help from an unexpected quarter. अचानक से उसको एक हेल्प मिली. जहां पर उसे डांटा जा रहा था अचानक से उसको एक हेल्प मिली. What kind of unexpected quarter? That let me explain to him, darling, said his father, who had just got up. If he is properly briefed, he will not do such a thing again. He started to explain. So what the father did, because the father was knowing until the boy will not be explained, about the proceedings of the outer surface and about my work, the boy will try it again and again. It means he will always violate the security of the passage. So it would be better to tell him what we do or what we are hiding to him. तो हम जो भी चीज़ें उसे छुपा रहे हैं, अगर हम उसे एक बार बता देंगे, उसे अच्छे से समझा देंगे, तो वो दोबारा ये गलती कभी नहीं करेगा. किसने बोला? उसके पिता ने बोला उसकी माँ से, क्योंकि उसकी माँ तो बहुत ही क्या हो गई थी, एंग्री हो गई थी, गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कई बार अपने बच्चे को इस काम के लिए डांटा था. लेकिन फाइनली लड़के ने इसकी बात नहीं मानी. तो इस बार उसके पापा ने सोचा क्यों ना मैं ये बच्चे को पूरी तरीके से इस बारे में बता. Listen Tillu, I work on a surface where an ordinary person cannot survive. So what I do, I work on the surface. मैं एक ऐसी जगह पर काम करता हूँ जहाँ पर एक नॉर्मल आदमी काम नहीं कर सकता. Because the air is too thin to breathe. मतलब क्यों? क्योंकि वहाँ जो हवा है, मतलब जो एटमॉस्फेयर है, that is not meant to be a good atmosphere for the human life. मतलब कि वहाँ जो एटमॉस्फेयर यूज किया जाता है वो एटमॉस्फेयर हमारे रहने के लिए सही नहीं है. एंड वेयर द टेम्परेचर इज टू लो, मतलब टेम्परेचर इतना कम है that you would
फ्रीज टू डेथ, कि आप जम करके क्या हो जाओगे, मर जाओगे। इतना ज़्यादा ठंड है, इतनी इसमें का टेम्परेचर इतना कम है कि आप जम के क्या हो जाओगे, मर जाओगे। और हवा भी क्या है, बहुत थिन है कि आप उसे ब्रेथ ही नहीं कर पाओगे। सो इट मीन्स दैट इज अ वेरी हाई प्रेशर आउटसाइड, नंबर 2 दैट वेरी लो टेम्परेचर आउटसाइड। सो बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, तो पापा आप कैसे सर्वाइव करते हो वहां पे? Who is going to read now? Ravikant, would you like to read? Okay, Divya, read beta. Okay, Divya, read. म्यूट का तो जैसे बटन ही नहीं आ रहा है। Okay. Now let me read it. There was a time, sorry, because I go well equipped. So how I go? I go with all the equipments required to survive in that atmosphere. In a special suit with a reservoir of oxygen. So what I do? I wear a special kind of suit in which the oxygen cylinder is already there, so that I can survive, I can breathe very easily in that atmosphere, and I can keep warm, and my boots are specially designed. So what kind of boot I wear? Or the boots are very special kind of boots by which specially designed to make it easy for me to walk on the surface. So it means you cannot go outside of the surface, only those can go outside, those who are having a special kind of suit, and they are well equipped with the things by which they can survive in that certain atmosphere. What's more, I have been trained to survive and work on the surface. और उसके अलावा मुझे ट्रेनिंग भी दी गई है by which I can easily survive outside. मतलब कहीं भी जाने के लिए उसे पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, वो उस तरीके के कपड़े पहनते हैं, उस तरीके के बूट्स पहनते हैं, then he could go outside. There was a time when our forefathers lived on the surface quite naturally. अब वो अपने पूर्वजों के बारे में बता रहे हैं कि एक समय था बच्चों जब इस सरफेस पर लोग रह लेते थे। मतलब there was a time when our forefathers lived on the surface quite naturally. मतलब जब उस जमाने में लोग इसी सरफेस पर बड़े ही आसानी से नेचुरल तरीके से रह सकते थे। Indeed, they did so for the millions of years. और उन्होंने कई सालों तक, वो कई लाख वर्षों तक वो वहाँ इसी तरह जीवित रहे। But times changed. समय बदला। The very sun which had provided us with some sustenance turned hostile. But जो सन, मतलब कि वही सन की बात कर रहा है, वेरी सन का मतलब वही सन, जो सन लोगों को क्या करता था, एक वातावरण प्रोवाइड करता था। वातावरण मतलब एक एटमॉस्फेयर देता था जिसमें लोग आराम से जीवन जी सके और क्या कहते हैं अपने जीवन को सुखमय बना सके, अपना विकास कर सके। वो क्या हो गया, टर्न्ड हॉस्टाइल। अब वो सन क्या हो गया है, बहुत ही गुस्से में हो गया है। अब वो सन हमारे प्रति क्या हो गया है, बिल्कुल हमारा विरोधी हो गया है। क्यों हो गया है, लेट्स सी। इट चेंज्ड ओनली स्लाइटली बट द चेंज वाज सफिशिएंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन दिस प्लैनेट। तो क्या कह रहे हैं कि पहले जो सन था वो हमारे नेचर को क्या करता था,
अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता था, लेकिन सन ने हम लोगों को प्रोवाइड करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सन के साथ भी हम लोगों ने क्या किया, अच्छा नहीं किया। जो आज हम लोग बच्चों पोल्यूशन और एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे एटमॉस्फेयर पे पड़ रहा है। और एक ऐसा समय आएगा जब हमारा एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से पोल्यूटेड हो जाएगा, हम लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कि कोरोना के टाइम में लोग इतनी साफ सफाई और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन क्या लोग पहले इतने कॉन्शियस थे? नो, दे वर नॉट सो कॉन्शियस। लोग हाथ नहीं धुलते थे, सफाई नहीं रखते थे, खुद भी नहीं नहाते थे, ना दूसरों को नहाने की प्रेरणा देते थे। लेकिन जब से कोरोना आया सब सुधर गए हैं। लोग नहा भी रहे हैं समय पर, काम भी कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, सारे कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें बीमारी हो जाएगी। मतलब जब तक वो देवर लिविंग इन अ गुड कंडीशन, देवर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट देयर ओन हेल्थ. So they were thinking that they are putting a little a spoonful poison in the nature. But you know that when you will put a spoonful poison in the nature, later it will become a sea of poison on the nature. तो पूरे पृथ्वी पर अगर आप एक चम्मच भी अगर आप जहर डालते हो तो धीमे धीमे वो जहर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम थोड़ा पोल्यूशन फैला रहे हैं, लेकिन ये पोल्यूशन बाद में इकट्ठा पोल्यूशन होकर पूरी पृथ्वी को ध्वस्त कर देगा। और यहाँ का जब नेचर खत्म हो जाएगा तो हम लोगों को भी आर्टिफिशियल कंडीशन में अपना जीवन बिताना पड़ेगा, जैसे टिल्लू और टिल्लू की फैमिली को बिताना पड़ रहा है। तो बस यही कहानी है इसकी, चलते हैं आगे, ठीक है। सो क्या हुआ कि सन जो था वो थोड़ा सा चेंज हो गया, स्लाइटली चेंज होगा, लेकिन चेंज क्या था, वो सफिशिएंट था पूरे नेचर के बैलेंस को बिगाड़ने के लिए। फर्स्ट द बर्ड बिकेम एक्सटिंक्ट। सबसे पहले क्या हुआ कि बर्ड्स क्या हो गई, विलुप्त हो गई, खत्म हो गए, सारे बर्ड्स क्या हो गए, खत्म हो गए। देन एनिमल्स फॉलोड, फिर एनिमल्स खत्म हो गए। द फिश कुडंट बेयर इट एनीमोर ईदर, उसके बाद फिशेस खत्म हो गई। We managed to survive only because of our superior technology. उसके बाद केवल हम बचे, मतलब इंसान बचे, ह्यूमंस बचे, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी। एनिमल्स के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, they were living in the nature's hand. बर्ड्स के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, they were living in the nature's hand. और फिशेस के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनका भगवान इतना दिमाग ही नहीं दिया था, तो इसलिए वो सब क्या हो गए, धीमे धीमे खत्म हो गए। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब धीमे धीमे बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जानवरों की जो क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। ऐसे ही वो बता रहा है कि आने वाली पृथ्वी पर ये होने वाला है, लेकिन हम बच गए अपनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी से। बट वी वर फोर्स्ड टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। लेकिन फिर भी हम सरफेस पर जिंदा नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वो सरफेस जो कभी किसी ज़माने में हम लोग मतलब लोगों के ज़माने में एक नेचर बैलेंस्ड एनवायरनमेंट हुआ करता था, वो अब नहीं रहा। इसलिए हमें अंडरग्राउंड रहना पड़ रहा है, एक आर्टिफिशियल कंडीशन में रहना पड़ रहा है। जैसे बच्चों क्या होता है, आर्टिफिशियल कंडीशन क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूँ थोड़ा सा। जैसे पहले ज़माने में जानवर और इंसान दोनों पृथ्वी पर बिना किसी दरवाजे या बिना किसी चौखट के रहा करते थे। मतलब जानवर और इंसान दोनों ही जंगल में रहा करते थे और दोनों ही सेम तरीके से जीवन यापन किया करते थे। फिर लोगों ने घर बनाए, सीमेंट बनाए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई और लोग बढ़ने लगे, उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी, पॉपुलेशन बढ़ती गई। पॉपुलेशन जब ज़्यादा बढ़ी तो क्या हुआ, पॉपुलेशन के बढ़ने से लोगों में खाने की कमी हो गई। खाने की कमी हुई तो लोगों ने फर्टिलाइज़र और इनका यूज़ करना चालू कर दिया। इससे सारे इंसेक्ट्स मरते गए। इंसेक्ट्स की कमी होने की वजह से जानवर, जो छोटे जानवर थे जो इंसेक्ट्स को खाकर जीवन बिताते हैं, उनकी भी कमी होती गई, क्योंकि उनकी भूख मिटाने के लिए कोई बचा ही नहीं। तो इस तरीके से ऐसे करते करते उनको खाने वाले इस तरीके से जो एक ये साइकिल चल रही थी, ये साइकिल क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। और डिस्टर्ब होने की वजह से
धीमे धीमे यहाँ का पूरा वातावरण क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, और सॉरी इम्बैलेंस हो गया, और इम्बैलेंस होने की वजह से पूरा इन्वायरमेंट क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, स्पॉइल हो गया। ठीक है, तो उसके बाद तो जब जानवर खत्म होते गए तो हमने क्या किया, जो जानवर बच गए उनको हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे रिजर्वॉयर्स बना दिए। क्या बना दिए हमने, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बना दी, क्योंकि जंगल खत्म होने लगे, जानवर मरने लगे, तो वो कहाँ जाते हैं, फाइनली वो जंगलों में घुसते थे, शहरों में घुस जाते थे। इसलिए सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए जानवरों को एक फिक्स एरेना के अंतर्गत एक आर्टिफिशियल कह सकते हो एटमॉस्फेयर प्रदान करने के लिए, मतलब उसमें फॉरेस्ट भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, वो आपस में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहते हैं, लेकिन वो किसका बनाया हुआ है, इंसान का बनाया हुआ है, इट इज़ मैन मेड। तो मैन मेड मतलब एक तरीके से आर्टिफिशियल ही है। उसी तरीके से अगर हम अपने लिए आर्टिफिशियल बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, नकली पेड़ लगाएंगे, प्लास्टिक के पेड़ बनाएंगे, प्लास्टिक के घर होंगे, मतलब हर चीज़ कैसी होगी, आर्टिफिशियल होगी, नेचुरल कुछ भी नहीं होगा। तो बोलो कैसी कंडीशन में रह रहे हैं इस वक्त, ऐसी ही कंडीशन में रह रहे हैं। थैंक्स टू द सोलर एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। सो अब इन लोगों के टाइम तक क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो चुका है, सारे पेट्रोलियम खत्म हो चुके हैं, सारे फॉसिल ऑयल्स खत्म हो चुके हैं, केवल और केवल एनर्जी का एक ही सोर्स बच गया, और वो क्या है, सोलर एनर्जी, जिससे वो लोग अपने जीवन में बिजली पैदा कर पा रहे हैं, बिजली का यूज कर पा रहे हैं। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन। लेकिन जो मशीनें सोलर एनर्जी जनरेट करती हैं, दे शुड बी ऑलवेज वर्किंग, otherwise we will be out of power. Some of them are on the surface. I belonged to the team whose responsibility it is to keep watch on them, to service them. अब मेरा काम क्या है बच्चों, मेरा काम है उन मशीन्स को देखना। किस मशीन्स को देखना, वो मशीन जो काम कर रही है सही से कर रही है या नहीं, क्योंकि अगर वो सोलर एनर्जी बनाना बंद कर देगी तो हम सभी क्या हो जाएंगे, ऐसे भी मर जाएंगे, क्योंकि हम चूंकि अब भाई सूर्य तो क्या कर रहा है, एकदम स्कॉर्चिंग हो गया है, हाँ हो चुका है, मैं भी खत्म कर, तो सूर्य क्या हो गया, बिल्कुल स्कॉर्चिंग हो गया है, अब वो हमें क्या कर देगा, जला देगा। तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट नहीं एक तरीके से अपने आप को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस आर्टिफिशियल कंडीशन को अपना रहे हैं। सो क्लास, आफ्टर दिस द चैप्टर इज अ लॉट ऑफ बिग. Okay, so rest of the part we will continue tomorrow. Okay, thank you everyone.